قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس 25 مارچ کو طلب۔ موجودہ اسمبلی کا 41واں اجلاس جمعے کے صبح 11 بجے ہوگا۔ اجلاس اپوزیشن کی جانب سے جمع کرائی گئی ریکوزیشن پر بلایا گیا ہے۔ یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے 25 مارچ کو۔ قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس 41واں اجلاس جمعے کی صبح 11 بجے ہوگا۔ 25 مارچ کو قومی اسمبلی اجلاس بلانے کا معاملہ ہے۔ سی ڈی اے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو موزوں جگہ تلاش کرنے کا کہا گیا ہے۔ اسپیکر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر چیئرمین سی ڈی اے نے موزوں جگہ نہ ہونے سے آگاہ کیا۔ حالات کا جائزہ لے کر ہی قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو یاسر، تمام تر نظریں اب 25 مارچ کو لگی ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے 25 مارچ کو۔ جی بالکل، دیکھیں قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ 2022 بروز جمعۃ المبارک دن 11 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کیا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے اجلاس آئین کی شق 3.54 اور شق 254 کے تحت تصویب اختیارات کو بروکار لاتے ہوئے طلب کیا ہے۔ اجلاس اپوزیشن کی جانب سے جمع کرائی گئی ریکوزیشن پر طلب کیا گیا ہے اور اجلاس موجودہ قومی اسمبلی کا 41واں اجلاس ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر کی جانب سے جو ایک لیٹر ہے وہ بھی لکھا گیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے جو 25 مارچ کو قومی اسمبلی اجلاس بلانے کی وجوہات جو ہیں اس کے اوپر اپنا حکم نامہ جو ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے کہ 8 مارچ کو اجلاس بلانے کی ریکوزیشن جو ہے اپوزیشن کی جانب سے انہیں موصول ہوئی۔ قومی اسمبلی نے او آئی سی وزرائے خارجہ اجلاس کے قومی اسمبلی ہال میں انعقاد کے لیے 21 جنوری کو قرارداد منظور کی تھی۔ او آئی سی وزرائے خارجہ اجلاس کے لیے قومی اسمبلی چیمبر کو فروری کے آخر میں ضروری تعزین و آرائش کے لیے وزارت خارجہ کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ اجلاس کی ریکوزیشن ملتے ہی سینٹ سیکریٹریٹ سے سینٹ ہال دینے کی درخواست جو ہے وہ کی گئی۔ اسپیکر کا یہ بھی کہنا ہے کہ سینٹ سیکریٹریٹ نے بھی حال کی تعزین و آرائش کے باعث چیمبر دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد چیئرمین سی ڈی اے اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو بھی قومی اسمبلی اجلاس منعقد کرانے کے لیے موزوں جگہ تلاش کرنے کا کہا گیا۔ اسپیکر کے حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اور چیئرمین سی ڈی اے نے بھی تحریری طور پر قومی اسمبلی اجلاس کے لیے کوئی موزوں جگہ نہ ہونے پر تحریری طور پر آگاہ کیا۔ تمام حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد قومی اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا کہ اجلاس جو ہے وہ 25 مارچ کو بلایا جائے اور 25 مارچ کو اب یہ جو اجلاس بلایا جا رہا ہے یہ قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن کی جانب سے ریکوزیشن جمع کروائی گئی ہے اس کے بعد بلایا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ یاسر ملک اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ حالات کے پیش نظر تحریک عدم اعتماد کو آگے لے جانا اسپیکر کا اختیار ہے۔ انہوں نے بلاول بھٹو اور شہباز شریف کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ بلاول کہتے ہیں دھرنا دیں گے، اپنی شکل تو دیکھو، کوئی مائی کا لال او آئی سی اجلاس میں خلل ڈال نہیں سکتا۔ جن ایم این ایز کو پیسے کی آفر ہو رہی ہے وہ حرام کا پیسہ لے لیں لیکن ساتھ عمران خان کا دیں۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ بلاول جو ہے وہ جس کے ابھی دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے سیاست میں، دودھ کے دانت نہیں نکلے ابھی تک، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دھرنا دیں گے۔ شکل دیکھو اپنی، اور او آئی سی کے خلاف دیں گے آپ۔ لعنت ہے آپ پہ، 3 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں جو او آئی سی کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سامراجی ایجنٹ ہے۔ شہباز شریف صاحب دیکھیں، شہباز شریف صاحب آپ کی ایچکن جو ہے یہ 10 سال تک نیکر میں بدل جائے، 10 سال آپ نیکر میں رہیں۔ اسپیکر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کل نہیں کر سکتا عدم اعتماد، لیکن اگر حالات ایسے ہوں، حالات کا تقاضا ایسا ہو تو وہ آگے لے جا سکتا ہے۔ کسی کی جرت ہے، اگر کسی میں ہمت ہے، اگر کوئی مائی کا لال ہے تو آ کر بتائے اور او آئی سی کانفرنس میں مداخلت کر کے بتائے۔ ذمہ داروں کا ایک فون آیا اور آپ لیٹ گئے۔ چوروں کے مال سے اگر ایم این اے مال لے رہے ہیں تو مال لے کے واپس آ جاؤ۔ اور پی ٹی آئی کے منحرف رکن قومی اسمبلی غفار وٹو کا کہنا ہے کہ ان پر کروڑوں روپے لینے کا الزام غلط ہے۔ 3.5 سالوں میں حلقے کا ایک بھی کام نہیں کرا سکے۔ مزید کہا کہ کرپشن ختم کرنے کے صرف نعرے لگائے گئے، ووٹ دینے کا فیصلہ حلقے کے عوام کی خواہش کے مطابق کریں گے۔ مایوسی اس بات پہ ہوئی کہ میں کچھ اپنے حلقے کے مسائل
करप्शन के हवाले से अपने जो अदारों में करप्शन थी उनके पास मैं रिटर्न सबूत के तौर पर लेकर गया कि जो खान साहब ये जो कुछ आप इंक्वायरी करवाएं और ये चीज़ें आप खुद चेक करें। लेकिन मैंने महसूस किया कि उस पर मांसवाए नारों की हाथ के आगे और कुछ भी नहीं था। सवाल पूछूं तो आगे ये इल्ज़ाम आ जाता है कि शायद कि जो है और 12-14 करोड़ रुपए का। मेरा ये मान है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है, और मैं इस तरह के मामले पे लानत भेजता हूँ और इसकी सख्त तरदीद करता हूँ। और एक जो सिंध हाउस में रैश का उसकी भी तरदीद करता हूँ कि वो भी बिल्कुल गलत बात है कि सिंध हाउस में बिल्कुल मैं मौजूद नहीं था। और आगे जो एतमाद का वोट है, जो इलेक्शन इसमें आना है, तो मैं अपने हलके के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक और अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करूँगा। पीपल्स पार्टी ने 16 करोड़ की ऑफर की। तहरीक इंसाफ की रुकनी कौमी असम्बली नुसरत वाहिद का दावा। वीडियो बयान में कहा कि आइंदा इंतखाबात के बाद स्पेशल सीट की ऑफर भी की गई है। हराम का पैसा शक्ल नहीं नस्ल बिगाड़ता है। पीपल्स पार्टी ने 16 करोड़ की ऑफर की। MNA नुसरत वाहिद का दावा, आइंदा इंतखाबात के बाद स्पेशल सीट की ऑफर भी की गई। ये भी कहा गया उनकी जानिब से। उन्होंने कहा कि हराम का पैसा शक्ल नहीं बल्कि नस्ल बिगाड़ देता है। मुझे पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 दफ़ा ऑफर आई है, एक पंजाब से और एक सिंध से। और पीपल्स पार्टी के ही लोग थे जिन्होंने मुझे कहवाया किसी के थ्रू। और ये ऑफ़र काफ़ी बड़ी ऑफ़र है, जो कि मेरे ख्याल में इसको रजिस्ट करना अच्छा खासा मुश्किल काम है। 16 करोड़ की थी। तो मैं और उसके बाद आपकी नेक्स्ट सीट नेशनल असम्बली की वो भी पक्की थी। और आपको जो प्रोजेक्ट मिलते हैं मुख्तलिफ उसके लिए अलग से पैसे थे। हराम की कमाई जो है वो शक्लें नहीं बिगाड़ती, वो आपकी नस्ल बिगाड़ देती है। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी कर दिए, पोजीशन वाज़े करने का कहा है। फवाद चौधरी का कहना है कि मुनहरिफ अरकान से 7 दिन के अंदर पोजीशन वाज़े करने का कहा है। 1 हफ्ते बाद इनकी नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी। तमाम मुनहरिफ अरकान ताहयात नाअहल होंगे। मखसूस नशिस्तों पर नए मेंबरान नामजद किए जा रहे हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास खत्म हो गया है। शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, इमरान इस्माइल, असद उमर और दीगर रहनुमा इसमें शरीक हुए हैं। सियासी सूरत हाल OIC इजलास की तैयारियों का इस इजलास में जायजा लिया गया। तरीन ग्रुप, इत्तेहादी जमातों और मुनहरिफ अरकान से राब्तों पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है। इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर जट बताएगा, कुछ फैसले हुए इस इजलास में? क्या माइनस उस्मान बुज़दार हुआ, कोई फैसला हुआ इसका? जी बिल्कुल। एक तो इत्तला ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो आज उनका मालाकंड का जलसा है, वज़ीर आज़म उसमें शिरकत के लिए बनी गाला से अब से थोड़ी देर पहले रवाना हुए हैं। उससे पहले उन्होंने एक इजलास की सदारत की जिसमें सियासी कमेटी के तमाम जो लोग हैं वो मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, अली ज़ैदी, गवर्नर इमरान इस्माइल, परवेज़ खटक, असद कैसर और शाह महमूद कुरैशी, ये तमाम लोग इस इजलास में शरीक थे। एक तो इत्तेहादियों के साथ राब्तों के हवाले से इस इजलास में ब्रीफिंग दी गई, और साथ ही परवेज़ खटक ने भी जो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ उनके राब्ते हुए हैं उन पर भी आगाह किया। और जिस तरह से तरीन ग्रुप की जानिब से माइनस उस्मान बुज़दार के हवाले से एक शर्त रखी गई है, उस पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान से उनको इस हवाले से ब्रीफ किया गया है। इसके साथ 27 मार्च का जो जलसा है उसकी तैयारियों के हवाले से भी आज के इजलास में तफसीली गौर किया गया। अरकान कौमी असम्बली और मज़ीद जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ राब्तों पर भी वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास में तमाम जो सियासी कमेटी के लोग हैं उनको इत्तेहादी जमातों और अरकान कौमी असम्बली के साथ राब्तों को मज़ीद बढ़ाने की हिदायत की है। और साथ ही 27 मार्च का जो जलसा है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुल्की सतह पर जो तमाम लोग हैं, कारकुनान हैं, उनको मुतहरिक करने की हिदायत की है। तो अब आज उसी सिलसिले में मुख्तलिफ़ जगहों पर जो सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि 27 मार्च का जो जलसा है उसके हवाले से PTI के कारकुनान को ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोबिलाइज़ किया जा सके। जी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज किया जा सके। अब इमरान खान रवाना हो चुके हैं मालाकंड जलसे के लिए। बहुत शुक्रिया उमर, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 मार्च को D चौक पर अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी और जलसे का मौजू
अमर बिल मारूफ होगा। ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि PTI 27 मार्च को अवामी ताकत का अज़ीमुश्शान मुज़ाहरा करेगी। चाहते हैं अवाम की हाज़िरी के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएं। जलसे का मौजू अमर बिल मारूफ होगा। वज़ीर आज़म का कहना है कि लूटी हुई दौलत बचाने के लिए सियासतदानों की खरीदो फरोख्त काबिल मज़म्मत है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि वज़ीर आज़म कहीं नहीं जा रहे, 5 साल पूरे करेंगे, अगले 5 साल भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही होगी। बिजनेस कम्युनिटी को कौमी मफाद के लिए खुलकर वज़ीर आज़म का साथ देना चाहिए कि दिस इज़ द राइट टाइम आप अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हों और प्राइम मिनिस्टर के साथ बतौर इमरान खान के साथ ना खड़े हों। आपने खड़े होना है नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, आपने खड़े होना है मुल्क की तरक्की के लिए, आपने खड़ा होना है पाकिस्तान की सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये राइट डिसीजन होगा अगर आप साथ खड़े होंगे, और दिस इज़ द टाइम जिसमें ये फैसला होना है कि आप राइट के साथ खड़े हैं या आप रॉन्ग के साथ खड़े हैं। तो मैं ये आज बात आपको बता के जाना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, ये अपनी 5 साल हुकूमत भी पूरी करेंगे, अगले 5 साल भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के होंगे। आप तगड़े होकर काम करें, तगड़े होकर डिसीजन लें। हमने मुल्क पाकिस्तान को जो है वो हर सूरत आगे लेके जाना है। वफाकी वज़ीर एजाज शाह का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद के पीछे हर वो शख्स है जिसे हुकूमती पॉलिसी से इख्तलाफ है। उन्होंने कहा कि मुनहरिफ अरकान वापस आ रहे हैं, बाज़ 26 को तो कोई 27 मार्च को वापस आ जाएगा। सोच समझकर मुनहरिफ होने का फैसला किया जाता है। हर वो बंदा जिसको कि इमरान खान की या PTI की हुकूमत से इख्तलाफ है या उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ है, वो इसके पीछे है। दाएं बाएं होते वो वापस आ रहे हैं। हमें उम्मीद ये है कि 26 तक सारे वापस आ जाएंगे। जो एक अद्धा रह गया वो 27 को आ जाएगा, वो 28 को आ जाएगा। बंदा डिसाइड कर ले कि मैंने जी नहीं रहना, तो डिस्क्वालिफिकेशन नो क्वालिफिकेशन मैटर करती है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वफाकी वज़ीर शेख रशीद PTI में चंद दिनों के मेहमान हैं। इमरान इस्माइल गवर्नर राज नहीं लगा सकते। सिलर सरकी में फूलों की नुमाइश के इफ्तिताह पर उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। 10 से 11 रोज़ वेट कर ले, फूल ही फूल होंगे इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान भर में। गवर्नर साहब को बोले आइन पढ़ लें, वो नहीं लगा सकते, उनका काम नहीं है ये। यार मैं चाहता हूँ मैं उनका एहतराम करूँ। मैं समझता हूँ सियासत को और दीन को ना मिलाएं प्लीज़। ये जल्दी से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए ताकि पाकिस्तान की आवाम जो है ना अब आगे बढ़ सके। अब वक्त आ गया कि लोग PTI से बाहर निकल रहे हैं। तो शेख रशीद साहब भी बस अब कुछ दिन के मेहमान हैं। जिस तरह 22 करोड़ आवाम को इमरान खान की हुकूमत ने इग्नोर किया, उसी तरीके से नजीब हारून साहब को भी 3.5 साल इग्नोर किया है। हुकूमती शख्सियात से मुलाकात में तरीन ग्रुप ने एक बार फिर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात की तवील फहरिस्त भी पेश कर दी। हुकूमती टीम ने वज़ीर आज़म से मुलाकात करवाने की भी पेशकश कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। तरीन ग्रुप माइनस उस्मान बुज़दार के मुतालबे पर कायम, हुकूमती टीम के सामने भी डिमांड रखती। तरीन ग्रुप की हुकूमती शख्सियात से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तरीन ग्रुप ने एक बार फिर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। पार्टी छोड़ना नहीं चाहते मगर उस्मान बुज़दार को माइनस करना होगा। तरीन ग्रुप ने 2 टोक पैगाम दे दिया। पंजाब के वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास की क़यादत में हुकूमती टीम ने तरीन ग्रुप से मुज़ाकरात किए। तरीन ग्रुप के 17 अरकान असम्बली ने वज़ीर आला के साथ तहफ़्फ़ुज़ात की तवील फहरिस्त पेश की। तरीन ग्रुप ने हलकों के मसाइल, ब्यूरोक्रेसी के रवैये और इंतकामी मामला से हुकूमती टीम को आगाह किया। हुकूमती टीम ने तरीन ग्रुप को वज़ीर आज़म या वज़ीर आला से मुलाकात की भी पेशकश कर दी। तरीन ग्रुप को बताया गया कि अगर आप वज़ीर आज़म के सामने अपने मामलात रखना चाहते हैं तो मुलाकात का एहतमाम करवा सकते हैं। मुज़ाकराती टीम ने तरीन ग्रुप के मुतालबा से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला की तब्दीली तरीन ग्रुप का पहला मुतालबा है। मुज़ाकराती टीम ने एतराफ़ किया कि तरीन ग्रुप ने हलकों के हवाले से बिल्कुल हकीकी तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। हुकूमती मुज़ाकराती टीम का तरीन ग्रुप से जल्द दोबारा टेलीफोनिक राब्ता होने का इम्कान है। आइंदा 1-2 रोज में तरीन ग्रुप से हुकूमती टीम की दोबारा मुलाकात भी मुतवक्के है।